السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھتے جائیں۔ تاریخ اسلام کی جو دردناک واقعہ سے بھرا ہوا ہے اور سنسنی خیز باب کی، جہاں وفا اور دھوکے کا سب سے بڑا امتحان ہوا۔ یہ کہانی ہے کربلا کی جو پہلی قربانی تھی وہ حضرت امام حسین کے جو جاننثار تھے انہوں نے دیا تھا۔ حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ اعتماد اور کوفہ والوں کی وہ بے دفاعی، پہلے سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے کربلا کے خونی مارکے کی بنیاد لیکن رکھی، کوفہ والوں کے اوپر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ وہ اعتبار کے لائق نہیں تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ایسی کون سی چال چلی تھی کہ 18,000 کا لشکر ریت کی دیوار کی طرح گر گیا؟ اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے وہ آخری الفاظ کیا تھے جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے رلا دیا؟ آئیے آج ہم تاریخ کے اوراق سے سچائی کی وہ عظیم اور رلا دینے والی داستان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی ویڈیو ہے۔ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی نالجیبل ویڈیو بنایا ہے دوستوں، لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ ویڈیو میں کچھ بھی ہو اور ویڈیو میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا یزید کا، جو یزید کے دور میں کس طرح یہ وہ دور ظلم تھا اور جب بربریت کا اسلام کی داستان تعلیمات کو بدلا جا رہا تھا اور یزید نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن نواسہ رسول اس ظالم حاکم کے آگے کیسے جھک سکتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب یہ خبر عراق کے شہر کوفہ پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے لوگوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ کوفہ پہلے بھی خلیفہ وقت حضرت علی علیہ السلام کا دارالخلافہ رہ چکا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں اور عام لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنا وہی شروع واقعہ ہے کیے۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کوفہ ہزاروں والوں نے خطوط خط کے اوپر خط لکھنا شروع کیا تھا کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کو بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستوں خطوط کا ان یہ کے سلسلہ اوپر اتنا کوئی بھی بڑھا اعتبار کہ نہیں تھا، نوبت حالانکہ ہزاروں حضرت امام خطوط حسین رضی اللہ تک جا تعالیٰ عنہ پہنچی۔ ان امام کے جاننثاروں نے حسین بہت ہی علیہ منع کیا تھا اتنے کہ بڑے کوفہ والوں انتخاب کی پر بات نہ بلا دلیل سنی کوئی جائے۔ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کوفہ والوں کے ارادوں کو اچھی طرح پرکھنا چاہتے تھے، کیونکہ تاریخ میں کوفہ والوں کے مزاج کے بارے میں بہت سی باتیں موجود تھیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب سے بھروسے مند، بہادر اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا جو پہلا ہی قربانی تھا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہلا اپنا جان کا قربانی دیا تھا، وہ پہلا قربانی تھا دوستوں۔ حالات کا جائزہ لو۔ اگر تم دیکھو کہ کوفہ کے سردار اور عام لوگ اپنے خطوط پر قائم ہیں تو مجھے فوراً اطلاع دینا تاکہ میں مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو سکوں۔ وہ مکہ سے نکلے، مدینہ گئے، وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد کوفہ کے اس صحرائی راستے پر روانہ ہو گئے۔ لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر آ گئے ہیں تو پورا کوفہ استقبال کے لیے امڑ آیا۔ مختلف روایات کے مطابق صرف چند ہی دنوں میں 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ کوفہ کا یہ جوش و خروش دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام بہت مطمئن ہو گئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط کوفہ لکھا والوں کا کہ چال کوفہ کے دیکھو حالات کس طرح ان بالکل لوگوں نے تیار اپنا ہیں، چال چلایا آپ تھا اور تشریف کس طرح اللہ کے لیکن وہ نبی اس کو بات کس سے طرح بے خبر پھنسایا تھے تھا کہ شام میں یزید بیٹھا کے کہنے یزید پر۔ دوستوں کوفہ کی اس بغاوت کو دبانے آج کے تک لیے تاریخ ایک بہت ہی یزید کو ظالم لعنت اور کیوں کر رہا ہے مکار شخص دوستوں؟ کو اسی کوفہ وجہ سے بھیجنے کا کہ فیصلہ کر یزید ایک چکا ہے۔ فریب شام تھا، سے ایک حکم نامہ یزید نے نکلتا ہے فریب کر اور کے کوفہ کی تقدیر نواسہ بدل رسول جاتی کو ہے۔ شہید یزید نے کیا تھا۔ بصرہ کے ظالم حاکم عبید آج اللہ تک جو ابن کربلا زیاد کا کو واقعہ کوفہ کا ہے نیا وہ اسی گورنر لیے وہ مشہور مقرر ہے کر کے دوستوں۔ بھیجا۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار، چالاک اور بے رحم انسان تھا جو اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف اور لالچ کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔
वो कूफा में इतने चुपके से दाखिल हुआ कि आम लोगों को कानों कान बेशक खबर दोस्तों न थी। देखो उसने सियाह किस रंग का तरह निकाब इसने ओढ़ा चालाकी हुआ से था, और अपना ताकि होशियारी लोग दिखाकर उसे इमाम किस तरह हुसैन कूफा में दाखिल हुआ था समझ और बैठे। किस तरह कूफा के नवासे लोग इतने रसूल के बेचैन लिए थे इसने कि अपनी वो तैयारी दौड़े मुकम्मल आए की थी। और खुशी से नारे अब लगाने आगे आप लगे लोगों कि को दिखा देगा कि किस तरह इसने धोखे में लेकिन जब ये नवासे काफिला रसूल को शहीद दारवाल किया था। इमारा यानी गवर्नर हाउस पहुंचा तो उसने अपने चेहरे से निकाब हटाया। लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये नवासे रसूल नहीं बल्कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, दोस्तों ये नाम भी कमेंट में नोट कीजिएगा कि ये कौन था। ज़ियाद ने कूफा की हुकूमत संभालते ही अपना मक्काराना खेल शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले कूफा के बड़े बड़े कबाइल के सरदारों को मख्फी तौर पर गवर्नर हाउस बुलाया। उसने उन सरदारों के सामने दो ही रास्ते रखे। एक तरफ बहुत बड़ी दौलत, जागीरें और उहदे थे और दूसरी तरफ बेरहम मौत और शाम के शाही लश्कर का खौफ। उसने धमकी दी, यजीद का देखो एक दोस्तों बहुत बड़ा किस तरह ये लश्कर धमकी दे रहा शाम है, से किस रवाना तरह हो चुका कह है रहा है कि और मुस्लिम जिसने बिन भी अकील मुस्लिम का का साथ साथ नहीं दिया देना है उसकी क्योंकि नस्लें मिटा दी यजीद जाएंगी। का हुक्म है। ये सुनकर कूफा के खूद गरज सरदारों के ईमान डगमगा गए। वो दौलत की लालच एक तरफ और जान उसने के डर से धमकी इमाम दिया था अलैहिस्सलाम दोस्तों, के दूसरी सफीर को तरफ तन्हा उसने छोड़ने पर खजाने तैयार हो पेश गए। किया था, इन उसने सरदारों दौलत ने पेश किया गवर्नर था कि हाउस ये से दौलत निकलकर दे के अपने अपने और कबीले के लोगों को डराना शुरू किया। अपने मर्दों को मुस्लिम के लश्कर में शामिल मत होने दो और उनकी क्या कह हिफाजत रहे हैं करो। दोस्तों कि अपने मर्दों को इस लश्कर में शामिल खौफ मत की होने एक देना। ऐसी सर्द लहर चली कि पूरा ये कूफा बन बनाई बदल चाल गया। है दोस्तों, हजरत मुस्लिम जो कि बिन अल्लाह के अकील नबी के नवासे अलैहिस्सलाम, के लिए इन जो लोगों ने इस किया वक्त था इमाम और जो हुसैन वाक़या अलैहिस्सलाम करबला के आज वफादार तक मीसल तारीख तम्मार यजीद को लानत कर रहा है इस वजह से क्योंकि इसने फरेब करके जैसे नवासे मुखलिस रसूल को सहाबा शहीद के किया घर था। के आम पजीर थे, उन्हें एहसास हो चुका था कि घेरा तंग किया जा रहा है। जब इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मेहमान नवाज बुजुर्ग सरदार हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह अन्हु को बहाने से बुलाकर शदीद जख्मी किया और कैद कर लिया तो पानी सर से गुजर चुका था। हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह अन्हु की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने कूफा वालों को इनकलाब और जंग की पुकार दी और देखते ही देखते हजारों मसल्लह लोग दारुल इमारा यानी गवर्नर हाउस के बाहर जमा हो गए। ये हजारों का वो लश्कर था जिसके हाथ में नेज़े और तलवारें थीं और जिनके दिलों में बज़ाहिर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद महल के अंदर खौफ से कांप रहा था। अब देखो दोस्तों सिर्फ चंद सौ तरह सिपाही मौजूद हालात थे। पलट जाएगा। लेकिन इस नाजुक मौका पर इब्न ज़ियाद ने अपनी आलूदा सियासत का सबसे बड़ा पत्ता खेला। उसने महल की छत पर कूफा के उन्हीं सरदारों को खड़ा किया जिन्हें उसने दौलत और उहदों का लालच दिया था। इन सरदारों ने नीचे खड़े अपने ही कबीले के लोगों को पुकारना शुरू किया। किस तरह उन्होंने कहा कि चला के अपने घरों को वापस लौट जाओ। यजीद की शाम का क़यादत एक में अजीम लोग और ऐलान बेरहम करवा लश्कर रहे हैं। यजीद की क़यादत में कूफा को जो नीस्त कूफा व के नाबूद बड़े करने बड़े के लिए सरदार रवाना हो थे, चुका वो भी है। बिक जो चुके अपने थे घरों को दोस्तों। वापस चला जाएगा तारीख उसकी आज तक जान और उनको माल भी लाल महफूज कर रहा रहेगी है। और जो बगावत पर अड़ा रहेगा उसका सर कलम करके उसकी नस्लें मिटा दी जाएंगी। ये सुनकर भीड़ में एक अजीब सी खलबली मच गई। खौफ की एक ऐसी चादर कूफा पर तन गई कि लोगों के हौसले पस्त हो गए। माऊ ने अपने बेटों के हाथ पकड़कर खींचना शुरू किए। बीवियों ने शवहरों का किस दामन तरह थाम खौफ लिया का और माहौल कहा, बन गया था, किस तरह लोगों के दिलों पर खौफ फैल गया था कि यजीद इतना बड़ा जालिम है। किस तरह लालच और जान का डर ईमान पर इमाम गालिब आ हुसैन गया। रजी अल्लाह एक-एक तआला अन्हु करके के लोग लिए पीछे किस हटने तरह लगे। ये चाल चला के किस तरह लोगों को धमका रहे थे, किस तरह सरदारों को खजाने देकर इनको खरीद रहे थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हुए। उस वक्त भी मस्जिद में सिर्फ चंद 100 लोग मौजूद थे। लेकिन जब नमाज खत्म हुई और जब तारीख के उस मजलूम सफीर ने सलाम फेर कर पीछे देखा तो पूरी मस्जिद बिल्कुल सुनसान थी। कोई एक शख्स, कोई अब देखो आगे क्या होने वाला है दोस्तों। अब आगे जो होने वाला है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मस्जिद से बाहर आए। इसी को कहते हैं कि वाक़या और करबला। खौफनाक हो चुकी थी।
आप एक ऐसी बस्ती में अकेले खड़े थे जहां सिर्फ चंद घंटे पहले 18,000 लोग आपके इशारे पर जान देने के दावे कर रहे थे। आप बिल्कुल तन्हा, शदीद प्यासे और कूफा की अनजान गलियों में बिला दिशा चलने लगे। किसी घर की खिड़की नहीं खुली, किसी ने पीछे से आवाज नहीं देखो दोस्तों, कूफा के लोगों ने किस तरह एक बहुत बड़ी गद्दारी मैदान को सुर्ख करने की हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम कूफा की अंधेरी और खामोश गलियों में चलते जा रहे थे। प्यास की शिद्दत से लब खुश्क थे। कूफा वालों ने जब आलम था कि अपनी किसी गद्दारी घर का शुरू की थी दरवाजा तो नहीं खुल रहा इसी की था। वजह चलते से चलते आप यजीद एक कामयाब हो मकान गया के था। सामने रुके जहां एक ज़ईफ और नेक बीवी खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। इस औरत का नाम तवा था, जो दिल से अहली बैत अलैहिस्सलाम की चाहने वाली थी। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने उस नेक खातून को सलाम किया और बड़े अदब से फरमाया, अस्सलामु अलैकुम, ए खुदा की बंदी, क्या मुझे अब देखो पीने के लिए दोस्तों, थोड़ा किस सा तरह ये पानी खुदा मिल की सकता है? बंदी पानी पिलाएगा और क्या कहेगा। बेशक दोस्तों, पानी देखो पीने के दोस्तों, बाद भी पानी जब पिलाने आप के वहीं बाद खड़े रहे, किस तो तरह तौला का ने कि कहा, भाई दिया। कूफा की हालत शरीफ इंसान, खराब है, तुमने पानी अपने पी घर लिया जाओ। है, उसको अब अपने पता ही घर नहीं जाओ, था रात कि बहुत हो चुकी है, हजरत मुस्लिम कूफा के हालात बिन ठीक अकील नहीं है। अलैहिस्सलाम है। हजरत मुस्लिम उसको अलैहिस्सलाम पता ही ने नहीं एक था गहरी सांस ली कि और हालात बहुत किस मजलूमियत तरह से फरमाया, तब्दील की जा "ए चुकी बीवी, थी। इस शहर में मेरा कोई घर नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ। तवाह ने लेकिन हैरत दोस्तों, से आप लोगों को पूछा, पता "तुम है इस कि शहर ये में मुसाफिर तारीखी हो? वीडियो आप लोगों आखिर के तुम लिए कौन बनाया है, हो?" रिएक्शन आपने वीडियोस का फरमाया, नाम "मैं है मुस्लिम बिन अकील हूँ।" मेरे ये नाम ब्लॉग सुनते चैनल ही में तवाह के नूर पैरों ब्लॉग्स तले पे। से जमीन निकल तो गई। आइए वो इसको इमाम सब्सक्राइब हुसैन करके आगे शेयर अलैहिस्सलाम कर के देते हैं। सफीर अकील के बेटे और हजरत अली अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। तवाह ने रोते हुए कहा, बेशक ऐ मौला, आप मेरे मकान में तशरीफ लाइए। उसने आपको एक महफूज कमरे सुभान में अल्लाह। बिठाया और एजाज के साथ खाना और पानी पेश किया। बदकिस्मती से तौगा का बेटा बिलाल जब रात को घर आया तो उसे मालूम अच्छा हो दोस्तों, गया देखो, कि इमाम तौवा का बेटा घर अलैहिस्सलाम आया। का सफीर उनके घर में मौजूद है। सुबह होते ही उसको वो दौलत मालूम और हुआ इनाम था की कि लालच में इमाम दौड़ता हुआ हुसैन गवर्नर अलैहिस्सलाम हाउस गया के और घर में उबैदुल्लाह इब्न मौजूद है। ज़ियाद लेकिन को क्या खबर दे दी। दोस्तों, वो बिक इब्न चुका था, ज़ियाद खरीद ने चुका था। फौरन अपने इब्ने एक ज़ियाद कमांडर ने इसको मोहम्मद खरीद बिन लिया था अशस को पहले से 100 सिपाहियों दौलत के के साथ लालच हजरत में। मुस्लिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम देखो ने दोस्तों, जब घोड़ों के टापों की आवाज और तलवारों की झनकार सुनी तो आप समझ गए कि इम्तिहान का आखिरी वक्त आ चुका है। आपने तलवार संभाली बेशक दोस्तों। और तौवा का शुक्रिया अदा करके घर से बाहर आ गए। आपने फरमाया, मुस्लिम बिन अकील मौत के डर से घर में छुपने वाला नहीं है। दर्जनों सिपाही ढेर हो चुके थे बेशक दोस्तों, और कूफा सुभान का अल्लाह। कमांडर हैरान खड़ा था कि एक अकेला शख्स पूरी फौज पर भारी है। मोहम्मद बिन अशास ने गवर्नर हाउस पैगाम भेजा कि मुझे सुभान और अल्लाह। फौज भेजो। मैं किसी आम इंसान से नहीं बल्कि बनु हाशिम के एक सुभान शेर से अल्लाह। लड़ देखो रहा दोस्तों, हूँ। इब्न ज़ियाद ने मक्कारी से जवाब दिया कि मैंने तुम्हें एक अकेले शख्स को पकड़ने भेजा है, पूरी फौज से लड़ने नहीं। लेकिन हालात इतने खराब थे कि इब्न ज़ियाद को मजीद लश्कर भेजना ही पड़ा। बेशक अब मारका इंतहाई शदीद हो चुका था और हजरत मुस्लिम अलैहि अस्सलाम चारों तरफ से दुश्मनों के घेरे बेशक में आ चुके दोस्तों। थे। जब कूफा के सिपाही अब हजरत देखो मुस्लिम दोस्तों, असल अलैहिस्सलाम मुकाबला को तो अब सामने होगा। से शिकस्त न दे सके तो उन्होंने मक्कारी का एक और रास्ता इख्तियार किया। बेशक उन्होंने दोस्तों। गली में एक गहरा यकीनन गड्ढा एक खोदा मक्कारी का और उसे रास्ता इन तिनकों लोगों ने और मिट्टी इख्तियार से किया छुपा था। दिया। जंग के दौरान बेशक हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम का पैर उस दहूके के गड्ढे पर पड़ा और आप उसमें गिर गए। इससे पहले कि आप संभलते, बेशक। चारों तरफ से दुश्मनों ने आप पर हमला कर दिया। आप शदीद जख्मी हो चुके देखो थे, दोस्तों। आपके होंठ कट चुके थे और दांत टूट चुके थे। इस मजलूमियत के हाल में आपको गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने दारवाल इमारा लाया देखो गया। दोस्तों, जब आप किस महल में तरह दाखिल इन हुए लोगों ने तो किस आपकी तरह आंखों से जुल्म की आंसू दास्तान जारी हो कायम गए। की दुश्मन और के किस एक तरह कमांडर मोहम्मद बिन अशअस उबैदुल्लाह ने बिन तंज ज़ियाद ने किया कि अपना जो इतने लश्कर बड़े पेश कर मकसद किस और तरह हुकूमत के लिए मक्कारी निकलता से है, काम वो किया। ऐसी मुसीबत पर रोता नहीं है। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने जलाल भरी आवाज में फरमाया, बेशक दोस्तों, खुदा, मैं अपनी जान के सुभान लिए अल्लाह। नहीं भी रो देखो रहा। दोस्तों, मुझे हजरत अपनी मुस्लिम मौत का बिन कोई अकील खौफ अलैहिस्सलाम नहीं। ने मैं तो अपने किस भाई तरह इमाम देखा था हुसैन हजरत अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन और रजी उनके अल्लाह मासूम तआला अन्हु को खानदान किस के तरह लिए रो सलाम रहा पेश हूँ, करेगा। जो मेरे खत पर भरोसा सुभान करके अल्लाह। इस जालिम शहर की तरफ आ रहे हैं।
आपने अपनी शहादत से चंद लम्हात पहले मोहम्मद अब बिन देखो अशद से दोस्तों, फरमाया, ये इतना पछता रहा था कि मेरा खत पढ़कर उसने एतबार करके आ रहा है। पैगाम इमाम हालांकि नॉलेजेबल वीडियो वाक़या करबला जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तारीखी वीडियो है यजीद के दौर में, कि यजीद ने किस तरह जुल्म करके किस तरह जुल्म का दास्तान कायम किया था।